সমুচিত ভূমিকা পালন করছে না। 513 জন অফিসার কে বদলি করেছেন, তার মধ্যে পশ্চিম বাংলায় 483 জন, বাকি 4টে রাজ্যে 26 জন, আর পশ্চিম বাংলায় হচ্ছেন 483 জন। 2.5 লক্ষ প্যারামিলিটারি ফোর্স, আধা সামরিক বাহিনী। আসামে নির্বাচন হয়েছে, অন্যান্য রাজ্যে নির্বাচন হয়েছে, গুজরাটে নির্বাচন হয়েছিল এর আগে, হরিয়ানায় নির্বাচন হয়েছে, দিল্লিতে নির্বাচন হয়েছে। কোথাও দেখেছেন যে 2.5 লক্ষ প্যারামিলিটারি ফোর্স কোথায় ব্যবহার করা হয়? যেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে, রক্তপাত হচ্ছে, আইনের শাসন নেই, সেই সব জায়গায় ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশনকে ঠিকঠাক করার জন্য আনা হয়। এখানে 2.5 লক্ষ মিলিটারি প্যারামিলিটারি ফোর্স ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে আমি বলবো এটা বিজেপি তৃণমূলের নির্বাচনী যুদ্ধ নয়, এটা হচ্ছে ভারতবর্ষ বাঁচানো, গণতন্ত্র বাঁচানো। সেই কারণে আমাদের মতো এই অধম মানুষদের, যাদের লোকে চেনে না জানে না, হ্যাঁ, সেই সিভিল সোসাইটির মানুষদের আজ প্রায় 1.5 মাস ধরে রাস্তায় আমরা এই প্রবল রোদে প্রতিদিন আমাদের রাস্তায় ঘুরতে হচ্ছে। কারণ হচ্ছে যে গণতন্ত্রটাকে বাঁচাতে হবে, ধর্ম নিরপেক্ষতাকে বাঁচাতে হবে। আর আপনি দেখবেন যে এই নির্বাচন কমিশন কিভাবে সংবিধান লঙ্ঘন করছে। আমি আপনাদের একটা জায়গা, খালি সংবিধানের একটা জায়গা আপনাদের পড়ে শোনাই। আমাদের নির্বাচন কমিশন কথায় কথায় বলছেন না, আর্টিকেল 325, 325, আর্টিকেল 325, 326, 327 এইগুলো বলছেন তো। দেখুন কিভাবে নির্বাচন কমিশন এবং সমগ্র কেন্দ্রীয় সরকার কিভাবে ভারতবর্ষের সংবিধানকে লঙ্ঘন করছে। লাইনটা হচ্ছে, নো পারসন টু বি ইনএলিজিবল ফর ইনক্লুশন ইন or to claim to be included in a special electoral roll on grounds of religion. কোন মানুষকে তার ধর্মের কারণে, তার জাতের কারণে, তার সেক্সের কারণে, লিঙ্গের কারণে নাম তোলা থেকে বাদ দেয়া যাবে না। আর্টিকেল সংবিধানের 325 নম্বর অনুচ্ছেদে পরিষ্কার বলা আছে। এই সাভার ইনস্টিটিউট তারা দেখিয়েছেন এই যত নাম বাদ গেছে তার মধ্যে 61 লক্ষ হচ্ছে মহিলা। ভাবুন, সংবিধান বলছে সেক্স অনুযায়ী কাউকে বাদ দেয়া যাবে না। এরা প্রচন্ড নারী বিদ্বেষী দেখে 61 লক্ষ, 1,24,00,000 মধ্যে 61 লাখ মহিলাদের নাম বাদ দিয়ে দিয়েছে। এবং দেখবেন নামবাদের যে তালিকা, তাতে মুসলিম প্রধান 5টা জেলা, যত নাম বাদ গেছে তার 50%-এর উপরে, 50% উপরে। আমি মানবাধিকার কর্মী, নির্বাচনে দাঁড়াই না, দাঁড়াবো না। ফলে মুসলিমদের আমি ভোটার হিসেবে দেখি না, নাগরিক হিসেবে দেখি। মুসলমানদের পক্ষে কথা বললে ভোটে দাঁড়িয়ে বিশেষ সুবিধা পাওয়া যাবে, এইরকম কোনো সুযোগ নেই। মাইন্ডার স্যার উর্দুতে বলছিলেন, আর এই উর্দু ভাষাকে বিদেশি ভাষা বলছেন, আর উনি বলছেন আপকি বার মোদী সরকার। সরকার কথাটাও তো উর্দু, সরকার কথাটাও উর্দু। জানেন না মূর্খের দল। সুকান্ত মজুমদার কথাটাও উর্দু কথা, মিলিয়ে নেবেন। একটা মূর্খের দল, দানবের দল। সমস্ত রাজনৈতিক দলের গণ আন্দোলনের ইতিহাস আছে, কমিউনিস্টদের গণ আন্দোলনের ইতিহাস আছে, কংগ্রেসের গণ আন্দোলনের ইতিহাস আছে, আর এই দলটার বেঈমানি করার ইতিহাস আর নারী নির্যাতনের ইতিহাস। ফলে আমি বলবো যে আমাদের কাজ, এটা গণতন্ত্র বাঁচানোর কাজ, এটা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বাঁচানোর কাজ। আমি বলি কোন সরকারই পবিত্র নয়,
পবিত্র সরকার ও পবিত্র নয়, আমি সে প্রশ্নে যাচ্ছি না। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে যারা এটাকে খালি বিজেপি এবং টিএমসির মধ্যে লড়াই হিসেবে দেখছেন, তারা আজকে ভারতবর্ষের বিপদকে ছোট করে দেখছেন বা দেখতে পাচ্ছেন না। আমি এই স্লোগানের সঙ্গে 100% একমত। আমি বলবো ইতিহাস থেকে, ইতিহাসে সিরাজদৌল্লার সঙ্গে যারা বেঈমানি করেছিলেন, সিরাজ সম্পর্কে নানা তার দুর্বলতা তুলে ধরে যারা বিরোধিতা করেছিলেন, তারা সেদিন বোঝেননি যে সিরাজের সঙ্গে বিরোধিতা করাটা, সিরাজের সঙ্গে বেঈমানি করাটা আসলে ভারতবর্ষের সঙ্গে বেঈমানি করা হয়েছিল। সেদিনও জগৎ শেঠ টাকা নিয়ে হাজির হয়েছিল, আজও সেই জগৎ শেঠরা আছে। কেউ কেউ ধরা পড়েছে, ওটা আমি বলি হিমশৈলের চূড়া মাত্র, হিমশৈলের টিপ অফ দ্য আইসবার্গ। ফলে আমাদের কাছে জনগণ আছে, আমাদের কাছে গণতন্ত্র আছে, আমাদের কাছে সত্য আছে। এবং এরা মুসলিম বিদ্বেষী শুধু না, এরা নারী বিদ্বেষী, আদিবাসী বিদ্বেষী, দলিত বিদ্বেষী। যে 91 লক্ষ লোকের নাম বাদ গেছে, আপনি দেখবেন তদন্ত করে, ওই পরেই নিশ্চয়ই বেরোবে, ভোটের পরে বেরোবে যে অধিকাংশই হচ্ছে হত দরিদ্র মানুষ। যে মানুষের গঙ্গা ভাঙড়ে বাড়ি চলে যায় সে প্রাণ বাঁচাবে, বন্যার জলে সুন্দরবনে যে মানুষের বাড়ি চলে যায় সে তখন তার নিজের জান বাঁচাবে না, কাগজ বাঁচাবার চেষ্টা করবে। আদিবাসী মানে ভারতবর্ষের প্রাচীনতম নাগরিক। তুমি তাদের কাছে কাগজ চাইছো, কত বড় স্পর্ধা তোমার। বাংলার মানুষের কাছে আমাদের আবেদন, বিজেপির বিরুদ্ধে এবারে নির্বাচন হোক, গণভোট। ইতিমধ্যেই আপনারা দেখেছেন 92-93% আমার মা বোনেরা সবচেয়ে এগিয়ে আছে। এই গণভোট দিন বিজেপির বিরুদ্ধে, গণভোট দিন। এমন শিক্ষা বিজেপিকে বাংলার মানুষ দেবে যে এটা আগামী দিনে অন্য কোন রাজ্যের উপর আক্রমণ করার সাহস না পায়। বাংলা দিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়েছিল 1857 সালে, যেটাকে ইংরেজরা সিপাহী বিদ্রোহ বলতো। আসলে ওটা ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রাম। আমাদের মঙ্গল পাণ্ডে ব্যারাকপুর থেকে শুরু করেছিল। বিজেপি মুক্ত ভারতবর্ষ, আরএসএস মুক্ত ভারতবর্ষ গড়ার শুরু অর্থ পশ্চিমবাংলা। আমার বিশ্বাস, আমাদের বিশ্বাস, গণতন্ত্র জিতবেই, ফ্যাসিস্ট আরএসএস সংঘ পরিবার পরাজিত হবে। ধন্যবাদ। एक अपील कर दें कि बंगाल की जमीन जो है वो इनकलाब की जमीन है, और इस वक्त जो वोट या इलेक्शन ली जा रही है, आप यकीन माने वो किसी एक पार्टी के साथ नहीं बल्कि बंगाल के अवाम को हराने की कोशिश है। लिहाजा मेरी बंगाल की अवाम से गुजारिश है, तमाम बंगाल में बसने वाले हर उस माँ बहन भाई से गुजारिश है कि खुदारा आप जरा सोचें, अपने बच्चों का मुस्तकबिल की फिक्र करें। ऐसा ना हो कि आपके लम्हे की गलती सदियों हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़े। लिहाजा पहली फुर्सत में अपना वोट जाकर डालें, और कबल इसके कि खाना पकाने का झमेला ना रखें। एक दिन पहले खाना बना लें, घरों में जो है फास्ट फूड का इंतजाम कर लें, लेकिन आपको वोट देना है। चूंकि आपका एक वोट कीमती है, वो हमारे बच्चों के मुकद्दर का फैसला करेगा। आप खाना पहले बना लें, पहली फुर्सत में वोट दें, चाहे वो लहलहाती धूप हो, गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त करे, लेकिन बंगाल की फजा को खराब न होने दे। इसलिए हर शख्स उस दिन अपने काम को छोड़कर पहली फुर्सत में जाकर वोट दें। और मैं इलेक्शन कमिश्नर से ये गुजारिश करूंगा कि हमारे जो लोग बूढ़े हैं, ज़ईफ हैं, बीमार हैं, उनके लिए कम से कम कुछ न कुछ व्हीकल्स का या किसी सवारी का इंतजाम जरूर करनी चाहिए थी। सवाल ले लें जी। सवाल ये है कि आप लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसमें हमायत जो है एक बड़ी पार्टी टीएमसी के लिए आपने हिमायत की, तो जो बड़ी पार्टी है उसको आप वोट दें, और बीजेपी को वोट
हरगिज ना करें। तो क्या विपक्ष में किसी को देखना नहीं चाहते हैं आप लोग? और अगर देखना चाहते हैं तो किसे देखना चाहते हैं? देखिए, सवाल विपक्ष में देखने ना देखने का सवाल बहुत सीधा सा है और बहुत सिंपल सा है। सवाल ये है कि बीजेपी को वोट ना दे, इसके लिए हम बोलने के लिए नहीं आए। बीजेपी को वोट वैसे भी कोई नहीं देता है। उसके मेरी बात सुन लीजिए, लेट मी फिनिश। उसके पास एक केडर है जो मंदबुद्धि अंधभक्त कहलाता है। ये थोड़े से लोग हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। उसके बाद जो कुछ भी है वो इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी होती है। सुनिए, आवाम वोट नहीं करती है, लेकिन उसी थोड़े सी आबादी को उसको फायदा होता है वोट के बंटने से। बीजेपी पूरी तैयारी करती है वोट बटे कैसे। वो 20 कैंडिडेट, डमी कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं हर सीट के ऊपर। तो इस बार तो उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया था। सिर्फ डमी कैंडिडेट ही नहीं, पूरी एक डमी पार्टी बनाकर खड़ी कर दिया था और वो एक्सपोज हो गया, अलग बात है, लेकिन कोशिश तो पूरी की है। 1000 करोड़ का इंतजाम भी कर दिया है। तो विपक्ष की बात नहीं है। अरे विपक्ष में कोई आ जाए उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो मकसद है वो ये है कि वोट डिवीजन की वजह से कोई फायदा ना उठा ले। तो आप या ये सब लोग इस स्टेट में जो रहते हैं, जो यहाँ की हकीकत से वाकिफ है, उनको पता है कि बड़ी पार्टी कौन सी है, बड़ा केडर किनके पास है, मजबूत पोजीशन में कौन है। हम किसी पार्टी का इसलिए नाम भी नहीं ले रहे हैं कि लोग इतने समझदार हैं, उनको इतना एजुकेट स्पून फीडिंग की जरूरत नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि आपका अगर कोई झमेला झगड़ा भी हो सकता है, तब भी आप उसको वोट दीजिए, क्योंकि वो रोक सकता है और दूसरे वाले नहीं रोक सकते हैं। हमारे लिए सभी अपोजिशन की पार्टियां बराबर हैं। हम कांग्रेस से भी उतने ही लगाव रखते हैं जितना सीपीएम से रखते हैं, सबसे रखते हैं। लेकिन रोकने की पोजीशन में कौन है, वोट बर्बाद नहीं करें और उनको फायदा न उठाने दें। इसलिए ये नो बेनिफिट्स का ये बैनर दिया हुआ है और कोई बात नहीं है। डायरेक्टली हम लोग या इनडायरेक्टली किसी भी तरह से किसी पार्टी के साथ अलाइन नहीं है। नहीं, डर नहीं है, डर की तो कोई बात नहीं हुई है। हमने तो आपको अपने इनिशियल स्पीच में ये बात कही है कि इनके 3 काम है मेजर। 2014 के बाद ये लाइन में खड़ा कराते हैं, कभी नोटबंदी के, कभी राशन लेने के लिए, कभी आपको सिलेंडर लेने के लिए, कभी पेट्रोल पंप की लाइन में, कभी आधार को पैन कार्ड से जोड़ने के लिए, कभी बैंक में लिंक करने के लिए, तो लाइन में खड़े हो जाओ। दूसरा कहते हैं ये है कि आपका अगर कोई हक है छीना जा रहा है, उसके लिए खड़े होंगे, लाठी बरस आएगा। तीसरा ये काम ये करता है कि घरों पर और दुकानों पर, बाजारों पर बुलडोजर चलाता है। जब ये 3 काम इनकी पहचान है, तो क्या इसको सपोर्ट करना चाहिए? आप खुद बताएं। हमें डरने न डरने की बात नहीं है। हम कह रहे हैं कि हम किस बुनियाद पर सपोर्ट करें। अगर ये कोई अच्छा काम करने वाली पार्टी होती ना, हमारा कोई लेना देना नहीं, हम इनको भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। इनका मैं कोई रिकॉर्ड देख लूं अच्छा कोई काम का, बताइए, आप ही बता दीजिए कि कोई अच्छे काम भी इनके हुए हो तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। बीजेपी से डर सिर्फ इसलिए है कि बीजेपी एक फिरका परस्त जमात है। उसका मेन मुद्दा जो है वो क्या है, वो उसका मेन मुद्दा ये है कि आवाम को बांट के रखा जाए। आज जो उसका मेन प्लान इलेक्शन का है, आप देखिए कि वो इकोनॉमिक सिचुएशन में, फॉरेन पॉलिसीज में या हमारे इंटरनल पॉलिसी, किस चीज में उसने क्या पेश किया है? कुछ नहीं। न रोजगार की बात करती है, न इनकम जनरेशन की बात करती है, न नए इंडस्ट्री कायम करने की बात करती है। तो क्या करती है सिर्फ कि मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाओ। तो ये कोई इंसानियत का तकाजा नहीं है। और अगर थोड़ा सा मुसलमानों से थक जाती है तो क्रिश्चियन के पीछे पड़ती है, एंग्लो इंडियन के पीछे, क्रिश्चियन के पीछे पड़ती है। तो ये जो तफरीक करने वाली पार्टी है, जो इंसानियत का सोशल फैब्रिक जो है हिंदुस्तान का, उसको मिटाना चाहती है। हिंदुस्तान हजारों साल से 6000 साल पुरानी तहजीब है और ये तहजीब जो है एक हारमोनियस डेवलपमेंट हुआ। ऐसा नहीं कि स्पॉन्टेनियस एक दिन आ गया। ये तहजीब बनती है जिसमें हमारे सूफे अकराम का, हमारे संतों का, हमारे औलिया अकराम का, हमारे बॉल सिंगर्स का, ये तमाम जो कल्चरल जो एफिनिटी था, ये जो अमेलगम, इट इज एन अमेलगम ऑफ मल्टी कल्चरल, ये और उसको जो है तार करने की कोशिश करती है सिर्फ अपनी एक पॉलिसी के, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। इसलिए मेजॉरिटेरियन हेजेमनी जो है, जो हर जगह वो लागू करना चाहती है, और होमोजेनाइजेशन ऑफ
द एंटायर कल्चर। हमारा एक ही कल्चर होगा, एक ही चीज है, एक ही जुबान है, एक ही लिबास है, एक ही तरह का खाना खाना चाहते हैं। तो दिस इज नॉट अ पार्टी ऑफ अ सिविलाइज्ड ह्यूमन पार्टी नहीं है, आप ये कह सकते हैं। इसलिए हम इसकी मुखालफत करते हैं और मुखालफत करते रहेंगे। एक सवाल ये है, অনেক বিধানসভায় এমন আছে যেখানে তৃণমূলের থেকে অন্য পার্টি শক্ত, যেমন কংগ্রেস, সিপিএম, আইএসএফ, সেখানে নাগরিকরা কি করবে? বাংলায় কেউ ছোটন দা আপনি বলবেন। মানে আমরা তো এখানে পরিষ্কার বলেছি, কোনো পার্টির কথা বলিনি। আমরা এটা আস্থা রাখি, হ্যাঁ, যে বাংলা আজকে যা ভাবে ভারতবর্ষ পাতা পরে ভাবে। ফলে বাংলার মানুষ জানেন যে কে কোথায় বিজেপিকে মোকাবিলা করতে পারবে। ফলে আমরা মাস্টারমশাই নই যে এখান থেকে ডিকটেট করে বলবো যে ও তোমরা অমুককে দাও, অমুক দলকে দাও, তমুক দলকে দাও। আমরা সেই মাস্টারমশাই নই। ফলে আমরা গভীর আস্থা রাখছি বাংলার মানুষের উপরে। তারা জানেন যে কাকে ভোট দিলে বিজেপিকে রোখা যাবে। सिविल सोसाइटी ऑफ वेस्ट बंगाल, सिविल सोसाइटी ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, गिव नो बेनिफिट टू बीजेपी। तो क्या आप लोग सिर्फ डिपेंडेबल है इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, या जो 29 तारीख को आने वाला इलेक्शन होगा तो उसमें तमाम एरिया में, तमाम बंगाल के रूरल एरिया में एंड अर्बन एरिया में जाएंगे इस बात को फैलाने के लिए, स्प्रेड आउट करने के लिए? हम लोग सिविल सोसाइटी एसआर को लेकर पिछले कई महीनों से ये काम कर रही है और लोगों में ये अवेयरनेस लाने की कोशिश करती रही है। तो अभी जाने का ये जो अभी मुकाबला है, सियासी पार्टियों का मुकाबला है, वो लोग अपना मुकाबला करते रहे। सिविल सोसाइटी इज द वॉच डॉग ऑफ सिविलाइजेशन, सिविल सोसाइटी इज द वॉच डॉग ऑफ कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी इज द वॉच डॉग ऑफ स्टेट। तो हम लोग जब देखते हैं कि जो एबेरेशन हो रहा है, जब कोई भी समाज, कोई भी ताकतवर पावरफुल हुक्मरान जो है वो रास्ते से गलत राह पर भटक रहा है, तो हम लोग उनको राह दिखाने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारा काम पकड़ के किसी को वोट दिलवाना नहीं है, हम लोग सिर्फ लोगों का कलेक्टिव कॉन्शियस को जगाना चाह रहे हैं कि देखिए आप कैसा समाज बनाना चाहते हैं। आप एक हेल्दी सेहतमंद समाज बनाना चाहते हैं जहां हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख सब मिल करके हम आहंगी के साथ रहते हैं, वो गंगा जमनी तहजीब के साथ। न आप एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां रोजाना दंगा और फसाद होता रहे और मजहब की बुनियाद पर लोगों का कत्ल किया जाए और जुबान की बुनियाद पर डेली लिंचिंग किया जाए। ये कोई और गोश्त खाने के जुर्म में उनके घर में घुस करके, फ्रिज में घुस करके आप ये करें, दिस इज नॉट फेयर। तो इसीलिए हमारा काम ये नहीं है कि हम इंटरवेंशन, हम सिविल सोसाइटी का काम ये है कि लोगों के जो गुड कॉन्शियंस है, उन लोगों का जो अच्छा चीज होता है, स्पिरिट होता है, उसको जगाने का काम करती है। तो हम लोग यही जगाने का काम कर रहे हैं। हम पॉलिटिकली गांव में जाके, देहात में जाकर के हम लोग ये नहीं कर रहे हैं कि पार्टी का प्रचार कर रहे हैं किसी का, वो हम नहीं करते हैं, ये हमारा काम भी नहीं है। सर मान लीजिए कि इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, हम एक खास पार्टी को लेके आते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे कि हॉर्स ट्रेडिंग का जो कारोबार होता है, अगर ये खास पार्टी उनको सपोर्ट करके जिनको आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तब आप लोगों का क्या रोल होगा? देखिए, ये तो होने को हो सकता है कि हॉर्स ट्रेडिंग भी हो जाए और पार्टी के कुछ एमएलए टूटकर इधर से उधर भी हो जाए, लेकिन उस एजम्पशन की बुनियाद पर हमें अभी कुछ स्टेप लेना चाहिए, ये नहीं हो सकता है। हम तो यही सोचते हैं कि एक पार्टी जब रोबस्ट मेजोरिटी लेकर आती है तो वहां से टूट नहीं होता है, लेकिन क्लोज मामला होने से थोड़ा इधर उधर हो सकता है। मगर मैं उम्मीद करता हूं कि बंगाल के लोग जो है वो बहुत कॉन्शियस लोग हैं, यहाँ की जनता बहुत समझदार जनता है, बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ, ये नौबत यहाँ नहीं आएगी इंशाल्लाह। 90% कल ये हुआ, वोटिंग हुआ है जी, इसके बाद क्या वोटिंग होगा? नहीं, 90+ का वोटिंग होना ये एंटी बीजेपी समझ में आता है, इसलिए कि लोगों में जो डर और भय इन्होंने पैदा किया है पिछले 2 महीने में, उसका ये रिस्पॉन्स है और उसका ये रिएक्शन है। और उम्मीद करते हैं कि इससे भी ज्यादा पोलिंग अब बचे हुए फेज में होगा।
लोग निकलेंगे बड़ी तादाद में और इसके खिलाफ इसको वोट आउट करने के लिए निकल रहे हैं लोग। ये उनके अंदर फिक्र पैदा हो गई है कि ये अगर रहेगा तो ऐसे ही हमको परेशान करता रहेगा, और गरीब जनता कहां से जाकर के ट्राइब्यूनल में पेश कर सकेगी अपने डॉक्यूमेंट्स को, नहीं कर सकेगी। मेरा सवाल है, बीजेपी और मोदी का बोलছে 135টা सीट আমরা दादा एक ही आदमी एक ही सवाल किया। अलायंस के बारे में बताइए, अलायंस क्यों नहीं हुआ? हम लोग जो एक मिनट, हम लोग जो है, आप लोग वोट ले, इसको करना, उसको वोट देना, नहीं करना, ये काम तो सेक्युलर पार्टी का था ना। आप लोग क्यों नहीं, अलायंस क्यों नहीं हुआ? ये सवाल आपका हमारे से नहीं हो सकता है। आप तो बोल रहे ना अलायंस क्यों नहीं हुआ, ये पार्टी का काम है। हम अलायंस कराने वाले तो वोट तो बढ़ता नहीं ना। हम पब्लिक है, पब्लिक से बात कर रहे हैं। हम तो अभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। हम आवाम से बात कर रहे हैं। आपने बात की कि वोट बढ़ने की बात की ना, वोट तो बढ़ेगा ही नहीं हुआ। देखिए, वो उनका पॉलिटिकल पार्टीज का मामला है, लेकिन आपको एक बात बता दें, अलायंस न होना कभी कभी फायदेमंद होता है। पिछले 15 वर्षों से तृणमूल की सरकार बंगाल में रही है। बंगाल ने 2011 से ममता बनर्जी की राजनीति को देखा, लगातार फैक्ट्री, रोजगार, एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम पर बात होता रहा। लेकिन अभी आप देखेंगे तो जूट, जो बंगाल एक केंद्र रहा है, वो मील बंद होते जा रही है। शिक्षा, कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम बिगड़ता हुआ जा रहा है बंगाल का। लोग पलायन कर रहे हैं, युवा पलायन कर रहे हैं, रोजगार को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। उसके बाद एक पार्टी जो सिर्फ पे आना चाहती है, पहली जीत की तलाश में, भारतीय जनता पार्टी, वो कहती है कि युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन एक तरफ वो 3000 रुपए की बात भी करता है, लेकिन वहीं तृणमूल सरकार भी, जो ममता बनर्जी, उन्होंने 1500 रुपए, 1000 रुपए, ये फ्री रेवड़ी देने का जो काम किया है, क्या बंगाल की अर्थव्यवस्था नहीं चरमराएगी? क्या 15 साल की राजनीति में बंगाल ने जो देखा, अब उनका समय आ गया है कि नहीं, अब बदलाव होना चाहिए? देखिए, ये सवाल भी सरकार से है, मुझसे नहीं है, मगर मैं मोटी बात आपको बताता हूँ। जो पार्टी कह रही है कि हम आकर के जादू की छड़ी चलाएंगे, वो भी पिछले 12 साल से इस देश में सरकार चला रहे हैं। कोई एक पैरामीटर हमें बता दीजिए देश का, जिस पैरामीटर में इंडिया अच्छा किया हो। अगर कोई एक पैरामीटर भी हमारे सामने हो तो हम उम्मीद करते हैं उससे। हर पैरामीटर में देश बहुत गर्त में गया है, हर सूचकांक नीचे गया है, इसलिए उनसे तो कतई उम्मीद नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जो देश की जीडीपी है, इंडिया की जो जीडीपी है, उससे अच्छी बंगाल की जीडीपी अभी भी है। नंबर 3, जूट फैक्ट्रियां पिछली सरकार में बंद हुई थी। आपको ये जानकर खुशी होगी कि बहुत सी फैक्ट्रियां रिवाइव हो गई हैं। जूट के कारोबारी जो कभी सुसाइड कर रहे थे, मैं मुर्शिदाबाद गया था तो पता चला कि इस वक्त तो जूट का मार्केट बहुत बूम किया है। हालांकि मैं सरकार का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, लेकिन हर पैरामीटर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लूज किया है, ये गवर्नमेंट उसमें ऊपर आई है। बात अगर आपने एजुकेशन की छेड़ दी है तो 92,000 स्कूल सरकारी बंद हुए हैं, जिसके 80% तादाद गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी से है। तो हम आप किसको लाना चाह रहे हैं इसको हटा करके? अगर ये खराब है तो इससे बहुत ज्यादा खराब वो लोग हैं। अगर ये इसका परफॉर्मेंस का आप मार्किंग कम दे रहे हैं तो उसका मार्किंग माइनस में है, इसलिए कम वाले को हटाकर माइनस वाले को नहीं ले जा सकता। एक सवाल है मेरा की इकोनॉमी जो अभी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, इट हैज dwindled टू 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी, इतने नीचे गिर गई है। तो ये बहुत अफसोस ना, ये अभी से बहुत अफसोस। एक सवाल मैं लाइव में हूँ, नहीं सुन लीजिए जरा सा, एक बार बोलने दीजिए, एक बार बोलने दीजिए, उसके बाद आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद है बंगाल होता है। हम बंगाल को नहीं लाना, जैसे मदद की बनावट फैलाती हो, लोगों को तकलीफ करती हो, बिल्कुल ठीक है। तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा और कुछ भी नहीं करते, आपको तो जाना पड़ जाए, क्योंकि बंगाल बचाने का मामला है, यहाँ की तहजीब और सकाफत को बचाने का मामला है, तो ये तो लाजमी है कि इससे हट कर भी कुछ किया जाए। हम लोग कल्चरल एक्टिविटी बहुत कुछ हुआ है। 3 महीने से हमने बताया, हम लोग का कल्चरल एक्टिविटीज होता ही रहता है, ये भी है। ये तो हम लोग आपस में हम लोग मिलते रहते हैं, यही कम नहीं है, वो दीवार गिरती रहती है, ऐसी बात नहीं। मैं लाइव में हूँ, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं। मैं चूंकि आप लोगों का बैकग्राउंड बहुत अच्छे से जानता हूँ और खुशनसीबी है कि सबका बैकग्राउंड बहुत अच्छे से जानता हूँ। यहाँ पे कमेंट आ रहा है कि आप लोग दलाल हैं। अब आप फिर से ये सफाई दीजिए, जो भी बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं, कि आप दलाल क्यों नहीं हैं और क्यों इस दलाल का टैग बर्दाश्त करने के बावजूद आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। আমি এটা তো ঘটনা ঠিকই বলছেন, যারা বলছেন তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে অন্তত এটুকু
মানে পরীক্ষিত বিষয় যে আমরা গণতন্ত্রের দালালি করছি। দালালি তো করছি, সংবিধান বাঁচানোর জন্যই তো দালালি করছি। আমরা দালালি করছি ভারতবর্ষের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো যাতে বেঁচে থাকে তার জন্য দালালি করছে। দালালি করছে ভারতবর্ষের এই কনস্টিটিউশন, বাবা সাহেব আম্বেদকর যিনি ড্রাফটিং কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন, সেই কনস্টিটিউশনকে উল্লঙ্ঘন করা হচ্ছে। একে বাঁচানোর পক্ষে দাঁড়াচ্ছি। আমরা গর্বিত, এই ত্যাগ পাওয়ার জন্য আমরা গর্বিত যে আমরা বিজেপি এবং আরএসএস যাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে বেইমানি করেছে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, সেই শক্তি আমাদের বলছে সংবিধান, এরা তো বলছেন আমরা এই সংবিধান বরবাদ করে দেবো, আর আমরা চাইছি সংবিধান রক্ষা করতে। অবশ্যই দালালি করছি, সেটা হচ্ছে সংবিধান রক্ষার পক্ষে দালালি করছি। দ্বিতীয়ত বলবো যে উনি প্রশ্ন করছিলেন না, আমরা এই সবাই মিলে একটি মঞ্চ বানিয়েছি, সংবিধান বাঁচাও বাংলা বাঁচাও মঞ্চ। সেই মঞ্চ থেকে আমরা গত 15-16 মার্চ থেকে শুরু করেছি ক্যাম্পেইন। দুবার আমাদের মঞ্চের গাড়ি আরএসএস এর কর্মীরা ভেঙে দিয়েছে। আমরা উর্দুতে 5000 লিফলেট করেছি, হিন্দি বাংলা মিলে 65,000 লিফলেট করেছি। ফলে আমরা আমাদের সাধ্য অনুযায়ী as a civil society member, as a civil society organization, we try our best to preach our voice. सिविल सोसाइटी आप तमाम लोगों का शुक्रिया करते हुए यही